Friend, very good morning, everybody. Friend, once upon a time, we used to be very free, flexible to visit our colleges, university. We used to visit shopping malls. We used to visit park, our friends, and blah, blah, blah. But unfortunately, now everything has been locked down. But don't worry. Let me tell you, my friend, we should thanks to the nature. कभी भी आप एक बात ध्यान में रखिए कि whenever we have crisis, whenever we have crisis, whenever we have problems, you are going to always have opportunity. And although this is very unfortunate, the time, the coronavirus pandemic time, very critical time we are going through, but on the other hand, this is going to be an opportunity for all of us to introspect ourselves. जैसे मैंने बताया कि जब भी कभी मुसीबतें हमारे लाइफ में आती है ना, तो नेचर हमें दूसरा दरवाजा खुला कर देता है. And we should consider this as an opportunity for us to self-evaluate ourselves, to introspect ourselves. हमें देखना चाहिए कि हमने अभी तक, क्योंकि अगर हम अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता है. Whenever we are visiting, whenever we are going to our colleges and university, we are always have very hectic schedule. हम इतना बिजी होते हैं कि हम देखते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं. Whether whatever we are doing is right or wrong, कभी भी हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं. But now since we are 24/7, we are locked down at home, we have got plenty of opportunity. We have got infinite time, truly speaking, to introspect ourselves. And मुझे सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट करना है कि इस समय को बर्बाद मत करिए. इस समय को yes, this is going to be a wonderful opportunity for us to spend quality time with our family members, and at the same time this is going to be a wonderful time for us to introspect ourselves. And इसलिए उसी बात को सामने रखते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ. I'm going to share my screen now. Yes, sir. Yes. Yes. So my friend, the topic of today's webinar, rather I would not say like this is topic of interaction. Unfortunately, we are not going to have one-to-one interaction, but I'm sure you are going to get a wonderful opportunity at the end of this session to ask as many questions as you can. So the topic of interaction today is going to be promotion of teachers under career advancement scheme of UGC. Now, basically, what is CAS? We all are very much familiar with this CAS. So, career advancement scheme is kind of a vertical movement scheme, I would say. Vertical movement scheme means this scheme is going to provide us an opportunity to have the social and economical enrichment. So, whenever we are talking about social and economical enrichment, this social and economical enrichment comes along with responsibility and accountability. The chief guest of this function has already mentioned that whenever we are working as a teacher, we always every teacher has to be highly accountable. Whenever we are saying accountability, we need to see like what are our responsibilities as well. So while going through this career advancement scheme of UGC, I will be introducing yourself that what the teachers should do, what would be a responsibility of teacher, what would be accountability of a teacher, so that whatever social and economical enrichment we are going to have through all these time bound promotions, we will be able to justify, we will be able to like आजकल जैसे आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में हाईली अगर हेवीली पेड कोई क्लास है, so this is wonderful class, I would say. This is noble profession. ये हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है कि now it is heavily paid and highly respected as well, but obviously respect depends on your own action. आपको respect तभी मिलेगा जब आपकी action वैसी हो, क्योंकि because
we teachers are role model to the society. It's not only for student. हम कहते हैं, हम जब भी हमारे बच्चों के सामने हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई teachers are role model for the students. Yes, I agree, teachers are role model for the student, but it's not only for the student. Teachers are role model for the society as well. क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं ना, सोसाइटी के सभी लोग हमें, they are observing very keenly. They are very keenly observing each and every action of teacher, and therefore we need to be highly responsible as well as accountable. My friend, this is going to be the outline of today's interaction. We are going to talk about, because whenever we are talking about career advancement scheme, I believe that the quality research is going to be one of the very important key aspect. Although, like, whether you are working in colleges or university, it doesn't make any difference. If you really want to enrich yourself socially as well as economically, then you need to have a substantial credential in research as well, apart from your teaching learning process. And therefore, to begin with, I will be talking about what is going to be impact of quality publications. What are those quality journals where we should publish our data whenever we are working in the laboratory. जब भी हमारे पास कुछ यूजफुल रिजल्ट हमारे पास हाथ में होते हैं, तो वहां वो रिजल्ट हम कहाँ पब्लिश करने चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टू बिगिन विद. एंड देन सेकंड पार्ट वुड बी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट what are the eligibility criteria for various stages of teaching positions under CAS scheme of UGC. And then next would be, what are the API, academic performance indicators, how those APIs are going to be calculated. Of course, we have to see what are the UGC guidelines, and at the end where I'm going to summarize. So to begin with, I'm going to tell you the impact of quality publication. Now, most of the time, like अगर मैं आपको पूछूं, क्योंकि I know out of these 350, most of you are from affiliated colleges. There might be few people from university departments as well, but most of you might be from affiliated colleges. And what I seen during last 32 years, पिछले 32 साल से मैं जो देख रहा हूँ, because let me tell you, my friend, I started my career from one of the affiliated colleges of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. I spent 11 years in one of the affiliated colleges. So ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है colleges की क्या मुसीबतें होती है, what are the challenges. I know there are lot of issues, lot of challenges whenever you are working in colleges. I know that. In spite of that, we need to focus on research. In spite of all those challenges, we need to focus on research. उसका रीजन ये है, आपको मैं बताना चाहूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू रेफर नेम ऑफ एनी टीचर्स, बट लेट मी थैंक्स टू ऑल दोस टीचर्स हु टॉट मी ड्यूरिंग माय एंटायर करियर. मुझे अभी भी पता है जिन टीचर ने मुझे बीएससी एमएससी को पढ़ाया है, दे वर एक्सीलेंट टीचर. नॉट ऑल, सम ऑफ देम वर वेरी एक्सीलेंट टीचर्स. Today, whatever I am today, it is true reflection of those very excellent teachers. लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये भी पाया, क्योंकि whenever I am like जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, whenever I take a stock of my all those 32 years, particularly जब मैं मेरी student जो लाइफ थी, तब मैं जब देखता हूँ वो टीचर्स की तरफ जब देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टीचर ऐसे थे कि they were excellent teachers, but unfortunately since they were not having PhD degree. आप देखिए, PhD डिग्री से मतलब नहीं है. Research experience is something different. Like even if you don't have PhD, still you could be very much research oriented. What I mean to say is PhD doesn't mean that research doesn't mean that PhD. Research is something different. Let me tell you. Of course, whenever you are doing research, PhD is going to be byproduct. क्योंकि PhD तो आएंगी. PhD के लिए कभी रिसर्च कभी भी नहीं करना. लेकिन जब भी हम रिसर्च करते हैं तो PhD हमारे पास आती है. तो मैं बता रहा था कि जो मेरे टीचर्स थे, कुछ ऐसे इतने बढ़िया टीचर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो रिसर्च में उतना योगदान नहीं था. आई कुड सी नाउ, बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज मतलब वो दिनों में मैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था. लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर आज देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टीचर जो मैं एक्सेलेंट कहलाता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो अगर टीचर उस दरमियान अगर PhD होते तो शायद उनकी टीचिंग का स्तर कम से कम 10 गुना और बढ़ता था.
क्योंकि मुझे 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 ऐसा लगता है कि whenever you are doing research, you are going to have in-depth knowledge of your subject. It doesn't mean that कि PhD जो होते हैं सभी के पास in-depth knowledge होता है, मुझे absolutely ऐसा कहना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो लोग रिसर्च करते हैं उनका in-depth knowledge बहुत बढ़िया होता है, and then they will be able to project, like whenever we are teaching to the student, you can project like what are the probable application of this area, what are the probable employment options you will be having, what are the entrepreneurship options the student will be having. ये सारे जो ऑप्शंस हैं हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं जब हम खुद उसमें अगर इफ यू आर सेल्फ आर इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज. इसलिए मैं कहता हूं कि रिसर्च इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट. दिस इज वन एस्पेक्ट. सेकंड एस्पेक्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा वो ये कि देयर आर मेनी रिसर्चर्स इंक्लूड टीचर्स एज वेल. मैंने ऐसा देखा कि although they are doing wonderful research, they are very very committed, very genuine researcher, hard working people, but in spite of that, since they are not aware, एक तो अवेयरनेस नहीं है और दूसरा जो है हमारा थोड़ा सा जो है ना, हम एक पर्टिकुलर बॉक्स में काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स हम जाने की हम कोशिश नहीं करते. हम जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उसके बाहर हम कभी भी जाने की कोशिश नहीं करते. And as a result of that, in spite of like although those researchers are very very committed, genuine, hardworking, but in spite of that, and their research outputs are also really good, but in spite of that, they are not being able to publish their data in good journal. सवाल ये है कि भाई जर्नल, गुड जर्नल किसको कहा जाता है, अच्छा जर्नल क्या है, हमें पता ही नहीं है. अभी आपको मैं बताऊं कि जो करियर एडवांसमेंट स्कीम में आप सभी को पता होगा कि इम्पैक्ट फैक्टर ऑगमेंटेशन जो है, मतलब उसका जो एपीआई ऑगमेंटेशन जो है, इट डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ थॉमसन रूटर. लेकिन आप जब, क्योंकि I have experienced that because I have been visiting many colleges and universities to like shortlist the students, I mean the candidate, उनकी interviews लेना वगैरह. I have gone through their cases as well, and there are, because I have seen there are many teachers, they don't understand what is Thomson Reuters, they don't understand impact factor Thomson Reuters क्या है, उनको पता ही नहीं है, and they are claiming like there are many substandard. I should not use a substandard. There are many, like we have got ocean of journals. महासागर है हमारे इर्द गिर्द. अगर आप देखोगे, there are many people, they are coming up with every new day, every new people are coming up with new journal. This is how the things are. मशरूम के जैसे आजकल जर्नल्स निकलना शुरू हो गए, हमें पता भी नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है. आजकल तो ऐसे भी जर्नल्स हमने देखे कि खुद होकर आपको लिखेंगे कि देखिए भाई आप 500 रुपए दे दो, 1000 you pay, and we are going to publish your not only single article, but maybe if you are having series of articles, they can be published in the same issue. क्या चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम अवेयर नहीं है. मैं किसी भी टीचर या रिसर्चर को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं उनका अंडरस्टिमेट भी नहीं करना चाहता हूँ. मुझे पता है कि देयर आर मेनी रिसर्चर, दे आर वेरी जेन्युइन, दे आर वेरी बी कमिटेड एज आई मेंशन अर्लियर, लेकिन उनको पता नहीं है. And that is why I thought today, let me spend some time on what is going to be a quality journals. So to begin with, first of all, we need to understand what is impact factor. Why high impact factor journals? पहले तो impact factor समझना important है, फिर impact factor कौन देता है, किसका है, that is second part. तो impact factor पहले समझने की हम कोशिश करते हैं. Let me tell you, my friend, if you look at this particular slide, you can see, like for example, a journal having like one impact factor in 2020. अगर किसी जर्नल का 2020 में अगर एक इम्पैक्ट फैक्टर है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते? So you can see the formula is A by B. What is A? Let me tell you first of all B. What is B? B is the total number of citable atoms published by that journal in 2018 and 19. Right? अब आप देखिए citable atoms and index journal. There are two important issues. I'm going to tell you later on those aspects, right? So सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक जर्नल है जिसके एक साल में 12 इश्यूज निकलते हैं, एंड इन ईच इश्यू देयर आर 12 आर्टिकल्स. तो एक साल में 12 इश्यूज एंड इन ईच इश्यू देयर आर 12 आर्टिकल्स. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, एक साल में रहेंगे 144 आर्टिकल्स. आप देखिए कि पिछले 2 साल के हमें टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे? 144 plus 144, 288. So 288 is going to be a denominator. And what is numerator? Numerator is out of those 288 articles,
published in last 2 years, for example 18 and 19, how many of them were cited by index journal during 2020? इसका मतलब ऐसा है कि 18 and 19 में जो 288 आर्टिकल पब्लिश हुए, out of those 288 articles, how many were cited? Let us assume that out of those, all the articles were cited at one time. देखिए सभी 288 आर्टिकल एक बार साइटेशन मिला है, तो कितना न्यूमरेटर जाएगा? न्यूमरेटर वुड बी 288, डिनोमिनेटर वुड बी 288, the value would be 1. It means whenever the impact factor is 1, it means that that जर्नल की जो 288 आर्टिकल है, सभी आर्टिकल को कम से कम एक बार साइटेशन मिला है। अब देखिए डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा या कम होगा। अगर मान लो आप मानिए समझिए कि आउट ऑफ 288 अगर 144 को ही अगर साइटेशन मिलता है तो इम्पैक्ट फैक्टर वुड बी लेस देन 1, लाइक 0.5। किसी को भी नहीं मिलता तो उस जर्नल को impact factor ही नहीं होगा। And let us assume that each article cited 2 times, so 288 multiplied by 288, it would be double, so impact factor will be 2. It means that the more number of citation, more would be impact factor. तो आप इतना तो आप समझ गए होंगे अभी कि जिस जर्नल के आर्टिकल को ज्यादा साइटेशन मिलता है वही जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय साइटेशन? अब साइटेशन कैसे मिलेंगे? आप देखिए, अब सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि आप डेली न्यूज़पेपर आप देखिए, डेली न्यूज़पेपर आपके घर में कोई मराठी न्यूज़पेपर आते होंगे, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आते होंगे, एंड आप जिस सिटी में रहते होंगे, जिस शहर में आप रहते हो, उस शहर में जो न्यूज़पेपर आपके घर में आते हैं वही न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किए जाते। There might be like numerous number of newspaper being published in your city, लेकिन आउट ऑफ द जो बेस्ट है उन्हीं को आप रेफर करते। इंग्लिश न्यूज़पेपर भी जो बेस्ट है उसी को हम रेफर करेंगे। ऑन व्हाट बेसिस? क्योंकि उसका क्रेडिबिलिटी पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है, लोगों का जो एक्सपीरियंस है, दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड। उनका क्रेडेंशियल हम काउंट करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू बाय ओनली दोज 1 or 2 न्यूज़पेपर टू रीड न्यूज, ऑथेंटिकेटेड न्यूज एवरी डे। वैसे ही वही आर्टिकल लोग पढ़ेंगे, उसी आर्टिकल को साइटेशन मिलेगा जिसमें कुछ नॉवेल्टी हो। अगर घसा पिटा वही रिसर्च अगर बार बार पब्लिश होता होगा, क्योंकि जिस जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, सबस्टैंडर्ड जर्नल जो मशरूम के जैसे आजकल जर्नल्स आ रहे हैं, वैसे जर्नल में अगर आप पब्लिश करेंगे तो वहां पर कोई रेफर नहीं करेगा तो आपको साइटेशन मिलेगा नहीं, साइटेशन नहीं मिलेगा तो उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं होगा। एंड देयरफॉर एक बात समझ लीजिए आप कि जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है वही जर्नल की क्वालिटी अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कौन सा इम्पैक्ट फैक्टर? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि सर मैंने ऐसे फलाने जर्नल में डेटा पब्लिश किया है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 6 है, 12 है, 15 है। Oh my God, how it is possible? Let me tell you, my friend, there are very renowned, very famous agencies across the globe. जैसे कि नीचे की लाइन आप पढ़िए, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहले हुआ करती थी, नाउ this has been taken over by Clarivate Analytics, जिसको हम थॉमसन रूटर की जो बात कहते हैं ना, बता रहा हूं मैं, the Thomson Reuters is also going to be taken care by Clarivate Analytics now. तो ये Clarivate Analytics one of the database, worldwide database है। They are looking after all those impact factors, all those quality aspect of the most of the quality journals across the globe. अगर आप देखोगे कि किसी जर्नल का थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर है और क्लैरिवेट एनालिटिक्स इम्पैक्ट फैक्टर है, तो ही वो जर्नल अच्छा हो सकता है। नाउ let us talk about indexing of the journal. I will before that let me tell you what is H index, because you must have seen citation and H index, क्योंकि आजकल H index is going to be no, first of all let me tell you what is H index. H index is a kind of a parameter which measures the productivity and impact of the published work of any scientist or scholar. This has been proposed or suggested by one of the physicists from University of California, San Diego in 2005. And nowadays, this is being used by most of the funding agencies as well. क्योंकि आजकल जो है वो देखते हैं कि आपका H index क्या है। The question is what is H index? H index का मतलब उसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ।
For example, a research scholar having 15 H index. What does it mean? 15 H index. 15 H index का मतलब ये होता है कि उनके number of article कितने भी publish क्यों नहीं होते, but out of those 15 articles, at least out of those published article, at least 15 article got 15 citations. Out of those published article, at least 15 article got 15 citation. जैसे कि मान लो किसी के 200 पेपर है, उनका अगर H index 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Out of 200, only 10 paper got 10 citations. So H index gives you the kind of productivity, a kind of impact of your published work, and therefore nowadays H index is being referred everywhere. आप फंडिंग एजेंसी को अगर आपका अगर प्रोजेक्ट अगर आप सबमिट करोगे तो आपको वो देखेंगे कि भाई आपका H index क्या है. इट्स नॉट ओनली H index, आपकी जो पब्लिश पेपर है उसके साइटेशंस कितने मिले हैं वो भी देखेंगे. एंड हु आर दोज, इट्स नॉट ओनली नंबर साइटेशन मिले हैं, लेकिन किन लोगों ने वो रेफर किए, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी काउंटेड. तो इंडेक्स की बात में कर रहा था, डेटाबेसेस. सो इंडेक्स, देयर आर मेनी इंडेक्सेस, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, शुरुआत में मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर. कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जैसे कि मेरे मित्र है सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज के टीचर्स, उनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, हमारे तो जर्नल्स ये स्कोपस इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स में होते ही नहीं. बिकॉज स्कोपस आपको सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी टीचर को पता होगा कि नैक आजकल ये भी पूछता है. ऑफ कोर्स दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम कॉलेजेस. ओके, खाली यूनिवर्सिटी को पूछा जाता है कि आपके स्कोपस इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स में कितने जर्नल्स है, कितने पब्लिकेशंस है. पहले NAC ये कॉलेजेस को भी पूछती थी, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड दैट वन ऑफ द प्रोविजंस, राइट. ट्रूली स्पीकिंग इट इज नॉट गुड, बट एनीवे आज NAC पे बोलने का समय नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट. तो मैं बता रहा था कि देयर आर मेनी इंडाइसेस. हमारे सोशल साइंस के लोगों को लगता है कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में हमारे तो पेपर होते ही नहीं है. लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, I will tell you these are the databases. You can see आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, यू कैन सी लेफ्ट आप अगर लेफ्ट कॉर्नर को पहला कॉलम देखोगे तो पता चलेगा दिस इज नेम ऑफ इंडाइसेस. लाइक आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स, कौन है उसका सब्सक्राइब करने वाला? वेब ऑफ साइंस. अगर इस इंडेक्स में पेपर पब्लिश करोगे तो इट विल बी काउंटेड अंडर वेब ऑफ साइंस. और प्रोवाइडर कौन है? थॉमसन रूटर. यू कैन सी लास्ट कॉलम देखिए, थॉमसन रूटर. आजकल वो थॉमसन रूटर की जगह लिए मैंने बताया कि क्लैरिवेट एनालिटिक्स ने जगह ली है. बिकॉज एवरी 2-3 years वो चेंज करते रहते हैं. आजकल ये थॉमसन रूटर जो है ये सब बिजनेस देखता है, क्लैरिवेट एनालिटिक्स. आप देखिए दूसरा है इंडियन साइटेशन इंडेक्स. ये मल्टीडिसिप्लिनरी है. पहला तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए है. ये मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब क्या है? ये साइटेशन इंडेक्स में किसी भी सब्जेक्ट के पेपर पब्लिश होते हैं, उसको हम ICI बोलते हैं. Then science citation index, this is basically for science teachers, science papers, and this is also under web of science. आप देखिए थॉमसन रूटर लास्ट जो प्रोवाइडर कौन है? थॉमसन रूटर. Scopus is another. You can see Scopus data index, and this is also multidisciplinary. There are many. यहाँ तो मैं 5000 लिखा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ये मैंने स्लाइड तैयार की थी. Now there are many because every day they are enriching the number, you know. And then again the providers elsewhere. Social science citation index, Springer citation index, there are many. कुछ मतलब मोटे तौर पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखने के लिए लिए. So these are some of the example of indices. So आपके जो पेपर है इस इंडेक्स जर्नल में अगर साइटेशन मिलता है तो ही वो थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल काउंट करने के लिए यूजफुल होता है. And that is why what you should do whenever you are having the research output, whenever you are having data with you, you should always identify what are the best journal in your area, and then उसी जर्नल को आप डेटा सबमिट करिए, उसी में आप आपके पेपर पब्लिश करिए, so that you can have the proper appropriate credential in the academic field. मैं आपको थोड़ा स्कोपस के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि आपको पता होगा कि स्कोपस क्या है. स्कोपस इज एल्सेवियर एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस लॉन्च इन 2004. ये स्कोपस में बुक सीरीज भी होते हैं, जर्नल भी होते हैं, ट्रेड जर्नल्स भी होते हैं. एंड देयर आर, दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी. लेट मी टेल यू, दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी. मेनी लाइक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि स्कोपस इंडेक्स में नहीं आता, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. Then comes Web of Science. जैसे मैंने बताया कि Web of Science is looking up to now Clarivate Analytics. Earlier ये कौन देखता था? Web of Science को पहले Web of Knowledge कहा करते थे. Now and then it was originally produced by Institute of Scientific Information.
now it is maintained by the Clarivate Analytics, जैसे मैंने आपको बताया. Web of Science भी multiple database है, multidisciplinary, rather cross disciplinary है. Thousands of journals they are looking after, and of all quality journals, my friend. Next one is ResearchGate. ResearchGate is social networking site. This is not database. This is social networking site of scientists and researchers to share the papers. तो यहाँ पर this was created by Germany in 2008. And let me tell you, my friend, यहाँ पर ResearchGate जो है, those teachers and scientists, those who are highly interactive on this platform, then only they can have a good RG score. ये मतलब आपको मैं बताऊं, मान लो आप एकेडमिक आपका बहुत अच्छा है, but if you are very passive, you are not interactive, then you are not going to have good RG score. And जिनका मैंने ऐसे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर देखे कि जिनका एकेडमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं है, बट दे आर हाईली इंटरेक्टिव. बिल्कुल आप वो सोशल मीडिया पे रात दिन बैठे रहते हैं, तो उनका आरजी स्कोर अच्छा होता है. दैट इज व्हाई आरजी स्कोर इज नॉट बीइंग यूज्ड एज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर. Of course, RG score is being referred, but it's not. Nobody is going to consider it as an academic performance indicator, because it's not only depends on your academic impact. It depends on how interactive you are going to be. एक Google Scholar भी एक नया इंडेक्स है, नया इंडेक्स नहीं है, it is started in 2004. मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि सभी जितने भी मेरे सोशल साइंस के मित्र हैं, उनको मैं कहूंगा कि you please go ahead and have your account in Google Scholar. See whatever paper you have, whether you have got some citation, at least Google Scholar citation. If you look at the citation indices, there are two. What is total number of citation received, what is your H index. So Google Scholar is one. Google Scholar के total number of citation आप अगर देखोगे किसी भी साइंटिस्ट के, आप ये दो डेटा अगर कंपेयर करोगे, जैसा कि Google Scholar के total number of citation and H index, and Scopus and Web of Science के total number of citation and H index, ये अगर कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि Google Scholar के नंबर बड़े ज्यादा होते हैं. उसका रीजन ऐसा है कि Google Scholar में कुछ सब स्टैंडर्ड जर्नल भी उन्होंने इंडेक्स करके रखे हैं, उन्होंने इंक्लूड करके रखे हैं. बट Scopus and Web of Science only, and मतलब Scopus में कुछ Scopus and Web of Science, let me tell you first, Scopus and Web of Science में only quality journals are considered, only quality journal, no substandard journal. Scopus की मैं बात कहूँ, Scopus में कुछ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी उन्होंने ऐड कर रखे हैं, लेकिन वेब ऑफ साइंस में नो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग. इसलिए आप अगर देखोगे आपके टोटल नंबर ऑफ साइटेशन Scopus के कंपेयर आप वेब ऑफ साइंस से करोगे तो और आपको कम नंबर दिखेंगे, HNS भी और कम नंबर दिखेगा, बिकॉज वेब ऑफ साइंस कंसिडरिंग ओनली एंड ओनली journal citations, not conference paper citations. However, Scopus में कुछ IEEE के मतलब not कोई भी conference के नहीं है, but very standard conference, जैसे IEEE के conferences है, IOP के कुछ conferences है, कुछ very standard conferences they are going to use. So this is how the things are. जर्नल आप जब सेलेक्ट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इम्पैक्ट इट्स नॉट ओनली इम्पैक्ट फैक्टर, देयर आर 3 to 4 पैरामीटर. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी journals, there are 3 to 5 parameters. One is site score. What is site score? Site score measure the average citation received per document published in this article. मतलब site score जो है ना, जितने आर्टिकल पब्लिश होते हैं ना, वो आर्टिकल को कितने साइटेशन मिलते हैं, that is going to be decided by that score is going to be how many number of citation the individual paper is going to receive, that is decide that will be responsible for getting the site score of the journal. उसका फॉर्मूला क्या है? जनरली वो 3 साल का काउंट रखते हैं. citation count on document published in 3 previous calendar years divided by the total number of document in these 3 previous years. जैसे कि मान लो पिछले 3 साल में आपके अगर 1000 आर्टिकल पब्लिश अगर होते हैं, तो that is going to be denominator, and वो 1000 आर्टिकल को जितने भी citation मिले होंगे, that is going to be your numerator, that is going to be site score. This is very important. Second parameter है 5 year का impact factor. Apart from impact factor I'm talking about, okay? So 5 साल का impact factor क्या है? Because कभी कभी ये होता है कि किसी जर्नल का 1 साल अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होता है, दूसरे साल नीचे जाता है. तो एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर मतलब पिछले 5 साल में whether that journal is consistently showing the quality, consistent record. So that is why 5 year impact factor is going to be very important. Next is SCImago journal rank.
HJR indicator is a measure of scientific influence of scholarly journals that accounts for both the number of citations received by the journal and the importance or prestige of the journal where such citations come from. मतलब क्या है इसका मतलब ये होता है कि it's not only citation, लेकिन वो किसने साइट किया है. जैसे कि मान लो मैं खुद हूं, जैसे कि मैं आज लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और एक रास्ते पे एक जा रहा है, वो आदमी कह रहा है कि सर आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था. दिस इज वन साइटेशन, राइट, वन रिकॉग्निशन. दूसरा रिकॉग्निशन है कि मेरे कुलगुरु है, मेरे कुलगुरु मुझे कह रहे हैं कि हाँ प्रोफेसर सिरसाट यू हैव डिलीवर वंडरफुल लेक्चर, राइट. यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस. तो इसीलिए ये जो एचजीआर क्या मेजर करता है, एचजीआर मेजर करता है कि इट्स नॉट ओनली टोटल साइटेशन, लेकिन किसने साइटेशन किया है, किस जर्नल ने आपके पेपर्स को साइटेशन किया है, वो भी एचजीआर काउंट करता है. एंड देन SNP is one more parameter. SNP is source normalized impact factor. So source normalized impact factor ये जो है ना इंडिविजुअल आर्टिकल का जो आपके साइटेशन है बेस्ड ऑन दोज, बिकॉज जैसे कि एक पेपर में मान लो एक जर्नल में 10 आर्टिकल है, तो 10 आर्टिकल को सेम साइटेशन नहीं मिलेंगे. So हर आर्टिकल को अलग अलग साइटेशन मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल पेपर. So SNP is going to normalize. So SNP is going to provide you the normalized impact factor. तो जिस जर्नल के 5 पैरामीटर आप वेरीफाई करोगे तभी वो जर्नल क्वालिटी जर्नल कहलाएगा. मैं आपको कुछ यूजीसी जर्नल की बात भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूजीसी स्कैस स्कीम में ये भी लिखा है कि आपके यूजीसी लिस्टेड जर्नल में है क्या. तो व्हाट इज यूजीसी केयर लिस्ट ऑफ द जर्नल, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि नाउ सिंस जनवरी 2019 दिस यूजीसी केयर कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो क्या हुआ, पहले तो यूजीसी जैसे कि यूजीसी खुद देखा करती थी, अभी बाद में उन्होंने देखा कि आपको भी पता होगा कि देयर वेर मेनी सबस्टैंडर्ड जर्नल व्हिच वर इंक्लूडेड इन यूजीसी लिस्ट. इसलिए हम फेड अप हो गए थे कि भाई कोई भी जर्नल है जिसकी कोई क्वालिटी नहीं, बट वी यूज्ड टू सी दैट इन यूजीसी लिस्ट. तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरी किए थे. पहला कैटेगरी ये था, ग्रुप ए था. नाउ दे हैव रिमूव्ड, दे हैव ओनली 2 ग्रुप्स. ओके, अर्लियर 4 ग्रुप क्या थे. फर्स्ट ग्रुप व्हाट जो स्कोपस इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स, जो भी ये 2 इंडाइसेस में पेपर पब्लिश हुए दैट वेर इन ग्रुप ए. मतलब इसका जरूर नहीं, मतलब किसी का पेपर अगर स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ यूजीसी लिस्ट, देयर इज नो सेकंड थॉट. देन ग्रुप बी ये था कि जर्नल क्वालिफाइड आफ्टर एनालिसिस एज पर प्रोटोकॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजीसी लिस्ट. मतलब उन्होंने क्या किया शुरुआत में कमेटी फॉर्म की यूजीसी केयर, एंड जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उनका अपना क्राइटेरिया लगा के एक लिस्ट बना दिया. दैट वाज ग्रुप बी. ग्रुप सी था कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि सोशल साइंस ह्यूमैनिटी के लोग बड़े ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे जर्नल को प्रॉपर वेटेज नहीं दिया जाता. तो यूजीसी ने क्या किया था, यूजीसी वाज फोकसिंग ओनली ऑन दिस ग्रुप. तो सी ग्रुप उसके लिए डेडिकेटेड था. एंड डी ग्रुप ये था कि जो हम रिकॉग्निशन जो चाहते थे, मान लो मैं अगर जर्नल शुरू करता हूं तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा. सो न्यू जर्नल जो भी सबमिटेड होते थे दैट वेर इन ग्रुप डी. लेकिन अभी यूजीसी ने वो सब चेंज कर दिया. देयर आर ओनली 2 ग्रुप. ग्रुप ए जो है दैट वी नो दैट ऑल स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, एंड बाकी जो 3 ग्रुप थे दैट दे हैव मर्ज टुगेदर एंड दैट बिकम्स वन ग्रुप. केयर यूनिवर्सिटी में आपको बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो नॉर्दर्न रीजन को देखती है. तो ये यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट नॉर्दर्न रीजन के होंगे वो उनको जो है नया जर्नल शुरू करना है तो जेएनयू को भेजना पड़ेगा. एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा महाराष्ट्र के लिए एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, जहां पर अगर हमें नया जर्नल शुरू करना है तो वी नीड टू अप्लाई टू एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फॉर सदर्न रीजन, एंड लाइक दैट ईस्टर्न रीजन के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम. और ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स, वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस स्कोपस इंडेक्स एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल. यू कैन सी इसका जो साइड स्कोर जो है सामने आप देखोगे, साइड स्कोर है 6.27, एंड इंपैक्ट फैक्टर है इसका, ईयरली इंपैक्ट फैक्टर है 6.99 6.3. इसका अगर आप देखोगे, क्योंकि सब कुछ मैं एक पेज पे मेरा लाना मुश्किल था, लेकिन आप देखोगे तो जो भी मैंने 4 पैरामीटर आपको बताए थे, एचजीआर, स्नीप, सब कुछ आपको मिलेगा. और यहाँ पर अगर ये जो सिंबल है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्योंकि दिस इज द स्क्रीनशॉट इसलिए यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ अगर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये इंपैक्ट फैक्टर कौन डील करता है. सो अगर यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज Clarivate Analytics. So nowadays, as I mentioned, Thomson Reuters जो है that has been replaced with Clarivate Analytics. So this is just an example. Likewise, you need to see. So before you publish your data, you need to ensure that you are publishing your data in very good journal. क्योंकि मैं फिर से यहाँ पर मेरी बात रखना चाहूंगा कि मेरे अच्छे बहुत सारे सोशल साइंसेस सभी डिसिप्लिन के बहुत सारे अच्छे टीचर्स है, स्कॉलर्स है,
जो कि जेन्युइन है, कमिटेड है, हार्डवर्किंग है, उनका डेटा भी अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली सिंस दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट पब्लिशिंग द डेटा इन गुड जर्नल, सो फॉर देम इट वाज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस. Now, I hope you must have understood what the journals are, quality journals, and they're important. Now, let us see eligibility of various stages of teaching positions under CAS. Let me have a think. सबसे पहले मैं कॉलेज, क्योंकि इस ऑडियंस में ज्यादातर कॉलेज टीचर्स होंगे, इसलिए माय फोकस वुड बी मोर ऑन कॉलेज टीचर्स. असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेवल 10 से लेवल 11 का जो क्राइटेरिया है कैस का, तो वो है इफ यू आर हैविंग पीएचडी, आपको खाली लेवल 10 में 4 साल करने हैं, यू नीड ओनली 4 year experience. If you are having MPhil, you need 5 year experience, and if you don't have MPhil or PhD, then you need to have 6 year experience. So इसका मतलब either 4 साल, 5 साल, PhD है तो 4 साल, MPhil है तो 5 साल, एंड अगर आपको कुछ भी नहीं है, MPhil PhD नहीं, सिंपली PG नेट है आप, तो 6 साल में आप एलिजिबल बन जाओगे लेवल 11 के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू हैव अ 21 days ओरिएंटेशन प्रोग्राम. 21 days और व्हाटएवर जो लेटेस्ट गाइडलाइन, क्योंकि मुझे पता चला है कि यूजीसी ने, एमएचआरडी ने अभी, एचआरडीसी कहते हैं अभी, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस को, ओरिएंटेशन का समय घटा दिया, रिफ्रेशर कोर्स का भी समय घटा दिया, बट व्हाटएवर यूजीसी का जो भी नया गाइडलाइंस है, यूजीसी की जो भी एचआरडीसी का जो भी ड्यूरेशन है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है एंड देन 1 रिफ्रेशर कोर्स. So there are 2 options. Either you can go to a full-fledged refresher course, or you can go to like 2 of the this kind of workshop, like syllabus upgradation workshop, teaching learning workshop. लेकिन आप ध्यान में रखिए कि अगर ये क्योंकि ये छोटे छोटे वर्कशॉप एक वीक के हो सकते हैं, तो यू नीड टू हैव अ 2 वर्कशॉप. अगर एक रिफ्रेशर कोर्स, स्टैंडर्ड रिफ्रेशर कोर्स एक चलेगा, या तो फिर ये 2 आपको करने हैं. और देयर आर वन मोर ऑप्शन, मूक के अगर कोर्सेस आपने किए हैं, मतलब इफ यू आर completed 1 MOOC course, or you have development of e-content course आपने किया होगा, that also can be considered in place of 1 refresher course. And then most importantly, CAS promotion criteria क्या है, उसके डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि आपको either satisfactory or good grade annual performance assessment report जो होता है, that is also very very important. This is where your like accountability is going to be taken care of, your responsibility. जो आपको, हमें जो प्रमोशन दिए जा रहे हैं, वो ये एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रियली वी आर अकाउंटेबल, रियली वी आर सेंसिबल, इज गोइंग टू बी टेस्टेड देयर. तो ये मैं आपको बाद में मेरे अलग से चार्ट मैंने बना रखा है. देन दिस इज सेकंड ग्रेड, लेवल 11 टू लेवल 12. अगर आपको लेवल 12 में जाना है तो 5 साल की सर्विस चाहिए 11 में, एंड यू नीड टू कंप्लीट 2 कोर्सेस ऑफ 2 weeks ड्यूरेशन. अगर आप 2 weeks में 10 days, ये कोई भी कोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए, जैसे कि उसमें अपग्रेडेशन है, टीचिंग लर्निंग है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, बुक कोर्सेज है, व्हाटएवर. इतना ध्यान में रखिए कि या तो आपको 2 वीक के 2 कोर्सेज करने हैं, अगर मान लो आपको 1 वीक के करने हैं तो वो होंगे 4. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देन अगेन प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, सेटिस्फैक्टरी और गुड आपको मिलना चाहिए एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट में. देन असिस्टेंट प्रोफेसर 12 to 13A, कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, 12 to 13A. यहाँ पर लेकिन क्या है, 3 साल की सर्विस चाहिए आपको 12 ग्रेड में, लेवल 12 में, एंड यू नीड टू हैव अ पीएचडी डिग्री विद इन द सब्जेक्ट, रिलेवेंट सब्जेक्ट, एंड यू नीड टू डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग लास्ट 3 years. मतलब इतना ध्यान में रखिए कि जो आपका जो असेसमेंट जो लास्ट 3 साल के होंगे, उसी दरमियान आपको करने पड़ेंगे. तो एक कोर्स आपको करना है, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करिए, अपग्रेडेशन वर्कशॉप, मतलब सिलेबस अपग्रेडेशन है, टीचिंग लर्निंग है, व्हाटएवर. यहाँ पर भी 2 वीक का होना चाहिए. अगर मान लो आपको अगर 5 days का 1 वीक का करना है तो 2 कोर्सेस लगेंगे. एंड सिमिलरली अगेन आपको सेटिस्फैक्टरी या गुड ग्रेड चाहिए. एपीआई की बात मैं इंडिपेंडेंटली करूंगा, क्योंकि आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट चार्ट फॉर दैट. देन एसोसिएट प्रोफेसर टू लेवल 13A to 14. कॉलेजेस की फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ. एसोसिएट प्रोफेसर हु हैव कंप्लीटेड 3 years सर्विस इन एकेडमिक लेवल 13A, मतलब जिन्होंने 3 साल 13A में कंप्लीट किया है, एंड पीएचडी डिग्री इन सब्जेक्ट, रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीएचडी, दिस इज मैंडेटरी. लेवल 13A से लेकर 14 को जाना है तो पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है. 10 रिसर्च पब्लिकेशन आप देखिए यहाँ पर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन peer reviewed or UGC listed journal. So peer reviewed
पीयर रिव्यूड का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पर भी काफी मॉकरी आजकल हो रही है। पीयर रिव्यूड का मतलब ये होता है कि उनका एक रिव्यूड सिस्टम चाहिए। पीयर का मतलब ऐसा है कि वो बड़ा स्टैंडर्ड वेल रिनाउंड पर्सन उसमें होने चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, राइट। एंड या तो फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल होना चाहिए, एंड मिनिमम 110 रिसर्च स्कोर होना चाहिए अपेंडिक्स 2 टेबल 2 के, वो मैं आपको डिटेल बाद में समझाऊंगा। एंड देन सिमिलरली यू नीड टू हैव अ सैटिस्फैक्टरी एंड गुड ग्रेड, दैट इज आल्सो ट्रू, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल लेटर। एज फार एज यूनिवर्सिटी टीचर्स आर कंसर्न, लेवल 10 टू 11 जो कॉलेज टीचर का है वो सेम क्राइटेरिया, उसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए फिर से रिपीट करना मैं सही नहीं समझूंगा। एंड 11 टू 13 सॉरी 11 टू 12 के लिए कॉलेज में अगर आप हो तो पीएचडी डिग्री मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी, यस, पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी। यू कैन सी सीरियल नंबर 2 इज एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सिटी टीचर। तो आप अगर कॉलेज में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिवर्सिटी में हो तो आपको पीएचडी डिग्री होना चाहिए। एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग एक्जैक्टली सेम व्हिच आई हैव मेंशन अर्लियर। 12 टू 13 में आप देखिए कि इफ यू कंपेयर दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कॉलेज के साथ अगर कंपेयर करोगे तो 4 और 5 जो है दैट इज एडिशनल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज 4, व्हाट इज 4 है मिनिमम 7 पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड, जो कि आप अगर कॉलेज में हो तो आपको 12 से 13A के जाने के लिए पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी यू नीड 7 पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड जर्नल। एविडेंस ऑफ हैविंग गाइडेड एटलीस्ट one PhD candidate, this is also very very important. If you are in college university, you need to have a proof of at least you have guided one PhD student apart from other requirement. And in from 13A to 14 in university, serial number 4 is something different, which is not there in college. So जैसे कि आपको चाहिए 3 साल का सर्विस 13A में, PhD डिग्री चाहिए, 10 पब्लिकेशन चाहिए, एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर नहीं दिए, आप एक स्टूडेंट भी चल सकता है जो कि कॉलेज में मैंडेटरी नहीं है बट यूनिवर्सिटी में इट इज मैंडेटरी है। 5वां पॉइंट लेकिन सेम है, 110 रिसर्च स्कोर एज पर अपेंडिक्स 2 ऑफ टेबल 2। एंड ये सेटिस्फैक्टरी तो सब तरफ चाहिए, मतलब जब भी आप कैस में जाते हो तो आपको प्रमोशन क्राइटेरिया में वो जो टेबल 1 है अपेंडिक्स 2 का, उसमें आपको सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड होना जरूरी है। And then this is only for university, applicable only for university senior professor level 14 to level 15। ये ऐसा है कि आप अगर level 14 में 10 साल आपके अगर चले गए, 10 साल आपका सर्विस है, तो पिछले 10 साल में आपके मिनिमम 10 पब्लिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 10 पब्लिकेशन 10 साल में। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ 10 years you are going to be evaluated। अर्लियर ये पहले ऐसा था कि इट वाज even right now it is only for applicable only for university, लेकिन यूनिवर्सिटी में पहले 5% टीचर्स को मिलता था, लेकिन अगर आपके पास 10 पोस्ट है तो 10% उसका 5% भी पोस्ट को आपको प्रमोशन मिलता था। लेकिन नाउ इट इज ओपन टू एवरीबॉडी, those professor who have completed 10 years of professor in level 14, all of them are going to be placed in senior professor grade as far as university teachers are concerned। मैं मानता हूं कि यहाँ पर कुछ कॉलेज के लाइब्रेरियन भी होंगे, उनके लिए भी मैंने कुछ स्लाइड तैयार कर रखे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप कॉलेज के लाइब्रेरियन हो और आप टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, अगर टीचिंग में इन्वॉल्व हो तो जो टीचर के लिए क्राइटेरिया वो सेम क्राइटेरिया होगा। अगर आप टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, आपका रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग डिपार्टमेंट आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं है, तो देन यू कैन फॉलो दिस क्राइटेरिया। अगर इस क्राइटेरिया आप देखोगे लेवल 10 टू 11 ये कॉलेज में जो टीचर के लिए है वो सेम मतलब लाइब्रेरियन के लिए भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं वो रिपीट करना नहीं चाहूंगा। एज फार एज 11 टू 12 इज कंसर्न, ये कॉलेज के जैसा है। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर 11 को 12 जाना है तो आपको पीएचडी चाहिए, लेकिन अगर कॉलेज में आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है 11 टू 12 लेवल जाने के लिए। तो लाइब्रेरियन के लिए अगर लेवल 11 टू लेवल 12 जाना है तो उनको पीएचडी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी क्राइटेरिया सेम है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, दो कोर्सेज ऐसे करने चाहिए जो कि 2 वीक के हो, या तो अगर आपको 1 वीक के कोर्सेज करने हैं तो 4 कोर्सेज करने हैं, सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड आपको मिलने चाहिए, दैट इज ट्रू। देन 12 टू 13A में कुछ क्योंकि सिंस इट इज नॉट गोइंग टू बी अ टीचिंग पोजीशन, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, रिसर्च पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर 3 साल का सर्विस है। एंड देन उनके कुछ कोर्सेज हैं, दे हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज कुछ अलग टाइप के कोर्सेज है, क्योंकि दिस कोर्सेज आर रिलेटेड टू स्पेशली रिलेटेड टू
एनरिचिंग द स्किल रिलेटेड टू लाइब्रेरी एक्टिविटीज, तो वो कोर्सेज उनको करने हैं यहाँ, लेकिन उनको पीएचडी की जरूरत नहीं, ना तो कोई पब्लिकेशन की जरूरत है। सिमिलरली फ्रॉम 13A to 14 यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इनको पीएचडी तो चाहिए लेकिन पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहे। 3 साल का सर्विस चाहिए, ये कोर्सेस उनको करना है, एनी वन ऑफ द कोर्स, एविडेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी, दे हैव टू शो सम प्रूफ एंड देन पीएचडी डिग्री। रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेटिस्फैक्टरी गुड क्राइटेरिया तो है ही है। एंड दे सिमिलरली फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, कुछ कॉलेजेस में इज टीचिंग डिपार्टमेंट, कुछ यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग डिपार्टमेंट है। इफ यू आर पार्ट ऑफ टीचिंग डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, देन अगेन सेम क्राइटेरिया होगा, वो अलग क्राइटेरिया नहीं होगा। लेकिन आप कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो कि आपका टीचिंग डिपार्टमेंट नहीं है, देन ओनली दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड। As far as level 10 to 11 is concerned, it is same, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर, आम असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है वही आप ही को भी है, इसलिए यहाँ पर मैं समय यहाँ पर बिताना नहीं पसंद करूंगा। 11 to 12 फिर से जो लाइब्रेरी के लिए मैं बताया वैसे ही है, यहाँ पीएचडी की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम पीएचडी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, लाइक 5 साल की सर्विस है, 2 कोर्सेस है, गुड एंड सेटिस्फैक्टरी आपको परफॉर्मेंस, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट में चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी देयर। एंड फ्रॉम 12 to 13A अगेन उनको 3 साल की सर्विस चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए, पब्लिकेशन नहीं चाहिए, उनको खाली एक कोर्स करना है। एंड ऑफ कोर्स ये कोर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगा और कुछ टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन पे भी हो सकता है, मूक है, ये भी हो सकता है। एंड 13 to 14 अगेन जैसे मैंने बताया 3 साल की सर्विस है, उनको एक कोर्स करना है, इट कुड बी रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन कोर्स, मूक का कोर्स हो सकता है। Evidence, this is very important, evidence of organizing competition and coaching camp at least 2 weeks duration, क्योंकि ये important है अगर आप 13A से 14 के लिए जाना चाहते हो। and then evidence of having produced good performance of teams, athletes, क्योंकि because since you are working as a sports officer or director, it is expected that you should have that kind of success credential, and therefore they are going to look into this kind of credential, and PhD is going to be mandatory। apart from ये तो होगा, ये तो कॉमन होगा, गुड और सेटिस्फैक्टरी ग्रेड जो है, एनुअल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये सभी के लिए कॉमन होगा। so this is what the eligibility criteria all about for all assistant professor level 10 to 15, I would say, from university, college, library officials as well as physical education directors। Now let us talk about the academic performance indicators। Now यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स है। मैंने पहले क्या किया कि आई हैव कंपेयर्ड दिस, ये जो ऊपर वाला चार्ट है ये कॉलेजेस के लिए है, नीचे वाला चार्ट जो है ये है यूनिवर्सिटी के लिए। आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 to 11 20 कॉलेज के लिए कितना चाहिए एपीआई 20 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, खाली 20। इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी 40। आपका जो है इंटरव्यू नहीं होगा, स्क्रूटिनी कमेटी फाइनल करेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 2 मतलब लेवल 11 to 12 50 चाहिए आपका एपीआई स्कोर अगर आप कॉलेज में हो, 100 चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी में हो। अगेन स्क्रूटिनी कमेटी फाइनल करेगी। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 to 13A मतलब एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर। इफ यू आर इन कॉलेज ओनली 45, बट इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी इट इज 90। एंड यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यहाँ पर स्क्रूटिनी कमेटी नहीं होगी, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एंड सिमिलरली लास्ट like 13A to 14 associate to professor, 60 during assessment period and 120 during assessment period for university। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर एम्बिगिटी है, यहाँ पर गलतियां है। पिछले मतलब यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसी में भी गलती है। मैं इसको गलती मानता हूँ, कुछ लोग इसको गलती नहीं मानते, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंटेंशनली किया गया। अब क्या गलती मैं आपको समझाने की कोशिश, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो वहां आपको दिखेगा कि यहाँ पर यू नीड 1110 एपीआई 1110 और यहाँ पर क्या बताएं 60। अब लोग क्या है ना, जैसे कि मान लो मैं अगर टीचर हूँ, इफ आई एम गेटिंग प्रमोटेड, तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, मैं कहूंगा कि 1110 जो है पूरे लाइफ टाइम का चाहिए, पूरे मेरे करियर का चाहिए, एंड 60 जो है मेरे असेसमेंट पीरियड का चाहिए। लेकिन मेरे भाई साहब ये ऐसा सही नहीं है। उसका रीजन ऐसा है कि जब आप 13A में आ गए तो आपका जितना भी अचीवमेंट है, जितने भी पब्लिकेशन है, that have already been utilized for place you in the 13A।
आप एसोसिएट प्रोफेसर जब बने तब आपके जितने भी पब्लिकेशंस है, जितना क्रेडेंशियल है, वो दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड, so there is no question of utilizing those again for professor promotion. तो इसीलिए यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी है, पता नहीं यूजीसी और गवर्नमेंट का जीआर वैसा ही है, एंड देन सिमिलरली जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ने ऑर्डिनेंसेस निकाले वो सेम गलती रिपीट कर रखी है। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम होते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर, यहाँ तो 3 साल का 60 लिखा है। यस, पीपल आर गेटिंग प्रमोटेड बाय दिस, आई मीन विद द सेम स्कोर आल्सो। तो अभी ऐसा है कि अभी कैसे मतलब लोग कैसे करते हैं कि 110 ड्यूरिंग एंटायर एकेडमिक करियर एंड 60 ड्यूरिंग लास्ट 3 years। गलत है, बट ऐसा ही हो रहा है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहाँ पर भी देखिए, वहां पर 1110 बताया, अब यहाँ पर 120 बताया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर लॉजिक यहाँ सही है, 1110 अगर पूरे लाइफ टाइम का है, एकेडमिक करियर का है, और 3 साल का 60 है, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक होना चाहिए। वहां 1110 है तो यहाँ 120 कैसे होगा, या तो कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर गलती है, लेकिन लोग मानते नहीं है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। सिमिलरली फॉर लाइब्रेरी के लिए भी ये चार्ट है, दिस इज फॉर कॉलेज पीपल, 20 फ्रॉम 10 to 11 20, 11 to 12 50 एंड 12 to 13 45 असेसमेंट। यहाँ पहले 2 स्क्रूटिनी है, तीसरा जो है सिलेक्शन कमिटी है। दिस इज फॉर यूनिवर्सिटी, अगेन फ्रॉम 10 to 11 40, 11 to 12 100 असेसमेंट, 100 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, ये एपीआई की बात कर रहा हूं मैं। एंड देन फ्रॉम 12 to 13 90 एंड 13A to 14 120। सेम थिंग इज ट्रू फॉर फिजिकल एजुकेशन। आप देखिए ये कॉलेज के लिए है, फॉर 10 से 11 वाला जो लेवल है 20 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, 11 से 12 वाला लेवल जो है उसका है 50, जो स्क्रूटिनी कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल करेंगी। एंड 12 to 13A जो है ये है 45 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, बट सिलेक्शन कमेटी इसको सेलेक्ट करेगी। एंड दिस इज फॉर यूनिवर्सिटी, 40 ड्यूरिंग 10 to 11, 100 11 to 12, and 12 to 13A 90, and 120 from 13A to 14. Okay, so this is all about the API requirement. Now as far as the good and satisfactory criteria is concerned, you can see this is table 1 is very very important my friend. You can see here activity 1 क्या लिखा है यहाँ पर, teaching number of classes taught divided by total number of classes। मतलब आपको अगर 100 classes अगर allot किए तो out of 100 अगर आपने 90 क्लासेस लिए तो इट इज गोइंग टू बी 90%। 80% एंड अबव आपको गुड मिलेगा, बिलो 80 to 70 सेटिस्फैक्टरी मिलेगा, और लेस देन 70% आपका क्लास का है तो नॉन सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। और ये जो एक्टिविटी जहां पर मैं आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बात कर रहा हूँ, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बताई कि हमारे टीचर जो है क्या क्या करना चाहिए टीचर में, क्योंकि हमें प्रमोशन अगर मिल रहे तो हमारा तो कोई उत्तरदायित्व बनता है। तो क्या होना चाहिए कि whether I am involved in academic administrative responsibilities, examination related work, student related activities, उसमें core curricular activities है, extension activities है, student counseling है, seminars है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने आप को एनरिच करना चाहोगे, आपके स्टूडेंट को एनरिच करना चाहोगे, तो यू नीड टू ऑर्गेनाइज conferences as well. Similarly, evidence of activity involved in PhD guidance, ये भी important है, क्योंकि आपने PhD guidance भी important है, क्योंकि आपको स्टूडेंट को गाइड करते भी आना चाहिए, क्योंकि if you are PhD then only you will be able to guide, consulting and then conducting minor and major research project। आप अगर minor research project लाओगे, major research project लाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, यूनिवर्सिटी का आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, and then at least one or single joint publication with peer reviewed, क्योंकि जॉइंट पब्लिकेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका सोलो पब्लिकेशन नहीं, जॉइंट पब्लिकेशन इसीलिए क्योंकि उससे कोलैबोरेशन की आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट की जाएगी। आप देखिए कितने एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 7 गुड के लिए कम से कम 3 एक्टिविटी। आप सोचिए एक्सपेक्टेशन यूजीसी कितने कम है, आउट ऑफ 7 इफ यू आर इन्वॉल्व इन 3 एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू एंड अप विद गुड, 1 or 2 सेटिस्फैक्टरी, और उससे कम है तो नॉन सेटिस्फैक्टरी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है, अनफॉर्चुनेटली आप देखिए किसी भी आप इसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, सभी के गुड आपको मिलेंगे, कहीं कोई पर भी वहां पर सेटिस्फैक्टरी भी मैंने कहीं देखा नहीं, फॉरगेट अबाउट नॉन सेटिस्फैक्टरी, सभी का गुड होता है। एवरीबॉडी, आई एग्री, सभी लोग मतलब खराब नहीं है, लेकिन सभी लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते। देयर आर सम पीपल इन कॉलेज एज वेल एज यूनिवर्सिटी दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज, बट स्टिल वो लिखता है गुड, रजिस्ट्रार भी बेचारे, कॉलेज के प्रिंसिपल बेचारे सिग्नेचर करते,
तो अगर वो लोग अगर हमें कोऑपरेट करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये हमारा तो उत्तरदायित्व बनता है, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एनरिचमेंट हमारी हो रही है, सोशल एनरिचमेंट ड्यू टू दिस करियर एडवांसमेंट स्कीम, फाइनेंशियल एनरिचमेंट जो हो रही है, इसके साथ साथ हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। सो दिस इज व्हाट द अकाउंटेबिलिटी इज, ये हमें करना जरूरी है। एंड देन लेट अस टॉक अबाउट द एपीआई। एपीआई जो पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाए करते हैं। पहले मैं ये चार्ट तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन मैं आई विल क्विकली गो थ्रू द चार्ट। रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल है, यहाँ यूजीसी लिस्टेड है। ये फैकल्टी, जिसमें फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वेटरनरी साइंसेज 8 पर पेपर, लेकिन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स एंड ऑल दोज 10। देखिए यहाँ पर ज्यादा वेटेज दिया गया। उसका रीजन ये है ज्यादा वेटेज क्यों गया, बिकॉज इट इज ये बड़ी मतलब सोची समझी एक्टिविटी है, क्योंकि जानबूझ के यूजीसी ने ज्यादा वेटेज दिया, क्योंकि उनको पता है कि इट इज नॉट दैट मच इजी, क्योंकि इनके लिए प्लेटफॉर्म, लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमैनिटीज टीचर दे आर पब्लिशिंग आई मीन बुक्स, ओके। उनको एनकरेज करने के लिए यहाँ पर ज्यादा मार्क्स रखे। यू कैन सी द बुक्स ऑथर अगर आप करते हैं तो इंटरनेशनल पब्लिशर है तो 12 है यहाँ पर, लेकिन एक जैसा वेटेज है। नेशनल पब्लिशर है 10 है। अगर आपका एडिटेड चैप्टर है बुक में तो 5 है। एडिटेड बुक्स में अगर इंटरनेशनल पब्लिशर है तो 10 है। आपने किताब अगर एडिट किया, ऑथर नहीं एडिट किया, नेशनल पब्लिशर है तो 8 है। देन आपने ट्रांसलेट किया है चैप्टर इन रिसर्च पेपर, चैप्टर और रिसर्च पेपर ट्रांसलेशन में 3 पर चैप्टर। अगर बुक ट्रांसलेट किया है तो 8 है। देन ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टीचिंग में। इनोवेटिव कुछ पेडागोगी आपने डेवलप की है, 5 है। करिकुलर डिजाइनिंग है 2 पर कोर्स। मूक कोर्सेज आपने डिजाइन किए हैं, तो यहाँ पर मूक कोर्सेज के कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए उन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ मूक कोर्स इन 4 क्वाड्रेंट 20 है। ये पर मॉड्यूल 5 है। कंटेंट यहाँ पर मतलब मूक के अलग अलग टाइप्स इन्होंने दिए हैं। ई कंटेंट डेवलपमेंट भी कुछ मार्क्स है। डिटेल में हम, क्योंकि कैलकुलेशन के समय में बताता हूँ। पीएचडी अगर 10 और पर अवार्डी 10, पर थीसिस सबमिट है तो 5। सेम थिंग इज ट्रू फॉर द अदर डिसिप्लिन एज वेल। दिस इज फॉर साइंस, इंजीनियरिंग एंड सो दिस इज फॉर सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी। एमफिल के लिए 2 पर स्टूडेंट अवार्डी। रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, मोर देन 10 लाख है, 10 मार्क मिलेंगे। लेस देन 10 लाख है, 5 मार्क मिलेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट मोर देन 10 लाख है, ऑनगोइंग, दिस इज कंप्लीटेड, दिस इज ऑनगोइंग। अगर मोर देन 10 लाख है 5, लेस देन 10 लाख 2। कंसल्टेंसी पर कंसल्टेंसी 3। देखिए कॉलेजेस के लिए भी ओपन रखा, मतलब सभी के लिए ओपन है। पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट आपके पास है, वेदर इट इज पब्लिश और ग्रांटेड, दे हैव नॉट मेंशन, सो इट मींस इट कुड बी पब्लिश और ग्रांटेड। इंटरनेशनल है 10 है, नेशनल है 7 है। एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने अगर कुछ लिखे हैं फॉर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अलग अलग मार्क्स है। आप देखिए अगर इंटरनेशनल बॉडी है तो 10 है पर डॉक्यूमेंट, नेशनल है तो 7 है पर डॉक्यूमेंट, स्टेट लेवल का है तो 5 है, 4 है। एंड देन अवार्ड्स, इंटरनेशनल फेलोशिप 7 पर फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप 5 पर फेलोशिप। एंड दिस इज इनवाइटेड लेक्चर्स और पब्लिश पेपर्स इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। इंटरनेशनल जो बाहर है, जो इंटरनेशनल है लेकिन बाहर आपने अटेंड किया है, उसमें 7 है। इंटरनेशनल है लेकिन विद इन कंट्री है 5 है। नेशनल है 3 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 2। अब ये मार्क्स क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। रिसर्च स्कोर फॉर रिसर्च पेपर विल बी ऑगमेंटेड। आप देखिए इसको ऑगमेंटेशन कहाँ है, राइट। अगर आपका पीयर रिव्यूड और यूजीसी जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर टू बी डिटरमाइन एज पर थॉमसन रूटर रूल्स, इसका मतलब क्या है, आप इस ऑगमेंटेशन की जब बात कर रहे हो तब द थॉमसन रूटर का इम्पैक्ट फैक्टर है तो ही ऑगमेंटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थॉमसन रूटर और अब मैंने बताया आपको क्लैरिवेट एनालिटिक्स, आजकल उसको क्लैरिवेट एनालिटिक्स के नाम पे जाना जाता है। तो अगर आपका रेफरेड जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, बट रेफरेड जर्नल है। रेफरेड जर्नल मतलब क्या है कि उसको जो है रिव्यू, प्रॉपर रिव्यू, पीयर रिव्यूड एंड रेफरेड जर्नल वन एंड द सेम, ओके। तो अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, क्वालिटी पीपल अगर इन्वॉल्व है तो, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो 5 मिलेंगे। लेस देन 1 इम्पैक्ट फैक्टर 10 पॉइंट ऑगमेंट होंगे, 1 to 2 15 पॉइंट, 2 to 5 20 पॉइंट, 5 to 10 25, मोर देन 10 30 पॉइंट। अब सवाल है कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
अभी अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो ऑथर है पेपर में, अगर दो ऑथर है तो 70% ऑफ टोटल वेटेज विल गो टू बोथ द ऑथर्स। मैं कैलकुलेशन का आगे आगे के स्लाइड में टेबल रखा है, दैट विल बी मोर क्लियर। एंड दो से ज्यादा है तो क्या होगा फिर, 70% गोज टू फर्स्ट ऑथर एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर, फर्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर बोथ ऑफ देम 70% टू ईच, एंड रिमेनिंग ऑथर जितने भी है सभी को, जितने भी है 5 है 10 है 15 है व्हाटएवर, सभी को 30%। अगर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आप को इन्वेस्टिगेटर हो, प्रिंसिपल एंड को इन्वेस्टिगेटर को 50% उसको डिवाइड, जो भी मार्क्स है उसको डिवाइड बाय 2 होगा। हाँ, अब कैपिंग की यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। व्हाट इज दैट? पेपर प्रेजेंटेड इफ ए पार्ट ऑफ एडिटेड बुक और प्रोसीडिंग देन इट कैन बी क्लेम एट वंस। जैसे कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए, पेपर प्रेजेंटेशन भी किया आपने और प्रोसीडिंग में भी आपका आया है या एडिटेड बुक में भी आया है, तो आप दो में से कहीं एक जगह पे आप क्लेम करोगे। देन फॉर जॉइंट सुपरविजन, मान लो आपका स्टूडेंट है जिसके लिए को गाइड है, तो 70% वेटेज विल गो टू both the authors, 70% whatever जो होगा ना उसका 70%। एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ कैपिंग की बात की, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिसर्च स्कोर ऑफ द टीचर, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम कैटेगरी 5B। 5B क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने लिखे हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जितना भी आपका स्कोर है वो, और इनवाइटेड लेक्चर और रिसोर्स पर्सन पेपर प्रेजेंटेशन का स्कोर 6, 5B एंड 6 का कंबाइन करके वो जो है 30 टोटल स्कोर का 30% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दिस इज द ओनली कैपिंग नाउअडेज यूजीसी हैज इम्पोज्ड। मान लो आपका टोटल स्कोर अगर 100 आता है तो आपका 5B और 6 30 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मान लो आपका 5B और 6 40 जाता है, आपका टोटल स्कोर 400 है और 5B और 6 40 जाता है, तो दैट विल बी रिड्यूस्ड डाउन टू 30, सो टोटल स्कोर बिकम 90 इंस्टेड ऑफ 100। तो ये कैपिंग है। एंड एपीएस कोड का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द चार्ट। यू कैन सी दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपका रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में है, यूजीसी लिस्टेड जर्नल में है, लेकिन इंपैक्ट फैक्टर नहीं है। ओके, इंपैक्ट फैक्टर पीयर रिव्यूड जर्नल है। ओके, दिस इज विदाउट इंपैक्ट फैक्टर, पीयर रिव्यूड है। ओके, लेकिन थॉमसन रूटर नहीं है। ओके, पीयर रिव्यूड है लेकिन थॉमसन रूटर नहीं है, तो आपके कितने मार्क्स रहेंगे? दिस इज एपीएस स्कोर विदाउट ऑगमेंटेशन, ईपीएस स्कोर विद ऑगमेंटेशन, राइट? तो ये यहाँ पर ऑगमेंटेशन होगा नहीं आपका, तो कितना होगा? 2 ऑथर रहेंगे तो साथ ही दोनों को 7-7 मार्क्स मिलेंगे। एंड मोर देन 2 ऑथर्स क्या होगा? 7 टू ईच प्रिंसिपल और करस्पॉन्डिंग ऑथर्स, दोनों को 7-7 मिलेंगे, और जितने भी बाकी ऑथर्स होंगे हर एक को 3-3 मिलेंगे। नाउ रेफर्ड जर्नल विदाउट इंपैक्ट फैक्टर, तो विदाउट इंपैक्ट फैक्टर मतलब क्या? 5 आर्गुमेंटेशन होगा। मान लो मैं अभी सोशल साइंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, साइंस के एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सोशल साइंस के क्या है, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के आपके अगर पीयर रिव्यूड जर्नल के बेसिक कितने मार्क्स है? 10, ये आर्गुमेंट होंगे, ये 10 + 5 ये 15 होंगे, राइट? अभी 15 अगर 2 ऑथर है तो 70% मतलब 10.5 टू ईच ऑथर। 2 से ज्यादा है 10.5 टू फर्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर, रिमेनिंग को 4.5, जितने भी है सबको 4.5। अगर उसका इंपैक्ट फैक्टर 1 है तो आपको कितने मिलेंगे? 10 + 10 मतलब 20, तो कितने हुए? 70%, 14 टू ईच ऑथर, खाली 2 ही है तो। अगर 2 से ज्यादा है तो 14 टू ईच फर्स्ट एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर, एंड रिमेनिंग 6 जो है सभी ऑथर को 6-6 मिलेंगे। अगर 1 to 2 के दरम्यान है तो कितना आर्गुमेंटेशन होगा? 15 + 10, ओके, तो टोटल होगा 25, तो 70% होगा 17.5, तो 17.5 goes to both the authors if it is 2 authors paper, and more than 2 authors again फर्स्ट ऑथर को और करस्पॉन्डिंग ऑथर को मिलेंगे 17.5 each and 7.5 each to all joint authors। 2 to 5 के दरम्यान ये कैलकुलेशन है, वैसे ही ये पूरे कैलकुलेशन है। आई होप कि आप जब सवाल करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। एंड देन ये टेबल 3 है, हालांकि ये टेबल 3 है, इससे रिलेटेड नहीं है, प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है। जब भी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज होंगे तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस टुडे, दिस स्लाइड। दिस इज फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड दिस इज फॉर कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का शॉर्टलिस्टिंग होता है तो उसका स्कोर ऐसे फाइनल करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली इंटरव्यू मार्क्स फाइनल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है टेबल 4 असेसमेंट क्राइटेरिया एंड मेथोडोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस। जैसा कि पहला टेबल 1 जो था बाकी टीचर के लिए था, लाइब्रेरियन के लिए कुछ अलग है। अब देखिए लाइब्रेरियन के लिए क्या पूछा है? रेगुलरिटी ऑफ अटेंडिंग लाइब्रेरी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ डे अटेंडेड
to the total number of days he is expected to attain. जैसा कि मान लो उनको अगर 100 day, if he is expected to be there for 100 days, out of 100 days he was there for 70 days, तो कितना परसेंट होगा? 70। तो अब देखिए यहाँ पर 90% एंड अबव अटेंडेंस है तो गुड होगा, उससे नीचे अगर है तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, 80 के नीचे है तो नॉन सेटिस्फैक्ट्री होगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अटेंडेंस अगर होता है तो उसने क्या करना चाहिए। सो लाइब्रेरी रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, provision of library reader services, assistant towards updating institutional website, ये सब करना है। Then second activity है conducting seminars, उसके भी डिटेल्स दिया है। फिर कंप्यूटराइज डेटाबेस बनाना है, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर सवाल आते तो आई कैन टेल यू डिटेल। देन ये है चेकिंग ऑन इन्वेंटरीज, डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स, ये सब एक्टिविटीज लाइब्रेरियन से एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली ऐसे ही क्राइटेरिया दिया है फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर को, उनका भी अटेंडेंस का ये फॉर्मूला है। 90% उनका टोटल नंबर ऑफ डेज कितना एक्सपेक्टेड है अटेंड रहना, और आउट ऑफ दैट हाउ मेनी डेज दे हैव अटेंडेड। 90 से ऊपर है तो गुड है, 80 to 90 सेटिस्फैक्टरी, लेस देन 80 नॉन सेटिस्फैक्टरी है। ऑर्गेनाइजिंग इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशंस, उसमें अगर कितने किए तो कितने गुड है, ये सब यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। Similarly, institution participation in external competitions, because whenever you are having physical education director, ये important रहेगा कि भाई आपका प्रेजेंस होते हुए आपके स्टूडेंट ने एक्सटर्नल कंपटीशन में कितने पार्टिसिपेट किया। अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका उसमें क्या उत्तरदायित्व है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी दिया हुआ है। एटलीस्ट वन स्टूडेंट, पांचवा है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन participating in national state university, मतलब देखिए कि you need to be very very proactive so that one or two, because हम NAC पे जब जाते हैं, because I have visited many universities and colleges as a NAC PA team member substantially, जब हम जाते थे पूछते हैं कि भाई आप ठीक है, आपके बहुत सारे एक्टिविटीज है, लेकिन tell us how many students have participated in national international event। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा आपका जो है फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर कितना एक्टिव है। सो उनके जो परफॉर्मेंस, जो एनुअल परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है, उसका क्राइटेरिया जो है ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इन समरी, क्वालिटी पब्लिकेशन एंड अदर रिसर्च कंट्रीब्यूशन विल हैव सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑन एपीआई। तो मेरा ये फिर से कहना है कि आपका जो पब्लिकेशन, क्योंकि मैं आप बताना चाहूंगा कि जब आपका क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन है, इसका मतलब यू आर वेरी जेन्युइन, वी आर वेरी कमिटेड, and you will be that is going to be reflected in your teaching as well. So that will have substantial impact on your academic performance indicator. And if we are honest, committed and focused towards the welfare of our student, API score on its own will keep on accelerating. My friend, my last humble submission to all the participants would be, हमें एपीआई बढ़ाने के लिए कभी भी काम नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर रहे हैं कि एपीआई बढ़ाने के पीछे हम काम कर रहे हैं मतलब जस्ट वी आर डूइंग ओनली दोज एक्टिविटी व्हिच विल लीड टू एनहांसमेंट इन एपीआई, लेकिन हम कभी भी नहीं देखते कि उस एक्टिविटी का मेरे स्टूडेंट को कुछ फायदा होने वाला है या नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर रियली कमिटेड, इफ यू आर रियली फोकस्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्टूडेंट, व्हाटएवर you do, that is going to be utilized for enhancement in your accelerating your API, and obviously you will be very very recognized and very very well accepted teacher. With this, I'm going to stop here.